Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you the concept of the complementary functions that are used for finding the solutions of the partial differential equation. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equation. जैसा आप देख पा रहे हो auxiliary equations, linear, non-linears, PY questions of the Cauchy equations, Charpit methods, Lagrange equations. All these lectures are available for you free of cost. So as I mentioned you, we have discussed in our last lecture how we can write the auxiliary equations of the partial differential equations. Based on this auxiliary equation, fine. Based on these auxiliary equations, we can learn today's lecture name as the characteristics or called as the complementary function. Fine. चलिए. So first of all, whenever our target is to find the solution of the partial differential equations, our target is to find the complementary functions and the particular integrals. How we can find the complementary functions? That is based on the auxiliary equations. फाइन. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था इस ऑक्सिलरी इक्वेशन लेक्चर में कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते कैसे हैं और उससे कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाएं. फाइन. एंड क्लियरली से द कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन corresponding to the homogeneous part, while the particular integral is the solution corresponding to the non-homogeneous part. और एक बात और याद में रखना कि पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी कैलकुलेट होता है जब आपके पास फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई जो भी राइट हैंड साइड है वो आपकी नॉन जीरो हो. क्लियर. और राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहो कि सर ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइन, लेट्स से यू ऑफ वाई वाई, फाइन, विच इज इक्वल टू यू. तो ये तो आपका एक्स और वाई पे तो इंडिपेंडेंट नहीं ना हुआ, तो इसको पहले लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे एंड इट्स अ जीरो. अब आपका यहाँ पे जीरो है, देन देर इज नो नीड टू कैलकुलेट दी पी आई विल बी जीरो. फाइन. तो वेन एवर फाई राइट हैंड साइड इज जीरो, द सोल्यूशन इज ओनली नीड टू कंप्यूट एज ए कंप्लीमेंट्री फंक्शन. और आज का लेक्चर यही है कैसे हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन को लिखेंगे. So once we can write as the auxiliary equations and we can find the roots of the auxiliary equation is m1, m2, mn. Fine. Based on the roots of the auxiliary equation, we can write as the characteristics or the called as the complementary function is f of y plus mix, where mi are the roots and how many arbitrary functions, जितना इस partial differential equation का order होगा. If this partial differential equation has order 3, तो ये F1, F2, F3 हो जाएंगे. मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. फाइन. बट once you have finding the roots of the auxiliary equation, it can be of the distinct, equal or the complex roots. फाइन. तो अगर ये अलग अलग आंसर आएंगे, then how we can write the complementary functions. For example, consider the three different auxiliary equations of the partial differential equations. Can you find the value of the m from the first equation? Clearly say m will be 1 and 2. Similarly, from the second equations, you can find the roots are 1, 1 and 1. While for the third equations, they are my 0, plus minus, 1 plus minus iota. Clearly say that for the first case, the roots are my real and distinct. Second is a real and equal, while the third is my real and complex both. These are 0 is my real, while the other two are my complex. Fine. अब जैसे ही आपको ये roots मिले, then the question is, how we can write as the complementary function. Clear? चलिए. So we will discuss the 5 different cases. बच्चों आज का लेक्चर आपकी थ्रू आउट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी भी रह गई है आपके कोर्स में, उस सभी के लिए आज का लेक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट है. So we will discuss the 5 different cases how we can write as the complementary functions with the several examples. चलिए पहला केस करते हैं when the roots are distinct. So when the roots are distinct, you can write as a complementary function is f1 y plus first roots m1 x plus second root f2 y plus m2 x. Similarly for the f3, f4 and the fn. Make sure students fi's are my arbitrary functions. तो ये functions आपके complex number ये functions आपके क्या क्या हो सकते हैं? It may be exponential. Fine. It may be trigonometry form. Fine. It may be constant
इट मे बी लॉगरिथम और एनी ऑफ द फॉर्म। और ये एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा वो भी हम निकाल सकते हैं वंस वी नो द इनिशियल एंड द बाउंड्री कंडीशंस corresponding to the partial differential equation. For example, suppose for the any partial differential equation आपने उसके auxiliary equation के रूट्स ये निकाल लिए, तो आपका complementary function क्या होगा? So the complementary function is f1 y plus 1x plus f2 y plus second root 2x. Similarly for the f3 y plus 3x. सिमिलरली यहाँ पे दो रूट्स हैं आपके पास, तो y माइनस 1x y प्लस 2/3x. सिमिलरली फॉर द जीरो इज y प्लस 0x एंड y प्लस 2x. सेकेंड केस, व्हेन द रूट्स आर माई रिपीटेड लाइक m1 m1, देन अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते थे ना, लाइक m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो आप उसमें भी लिखते थे ना, आप कैसे लिखते थे आप सोल्यूशन c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस, क्योंकि ये रिपीटेड है तो आप इसके साथ x लगा देते थे ना, तो यहां पे भी सेम करेंगे हम। पहले एक के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस m1x. नाउ बिकॉज द सेकेंड इज माई रिपीट, तो आप साथ में x लगा दोगे, बाकी वैल्यू सेम रहेगी y प्लस m2x. अगर फिर भी रिपीट है तो नेक्स्ट बार x स्क्वायर लगा देंगे, जैसे इस केस में, इस केस के लिए f3 y plus m1x and so fine. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ यू कैन राइट एज ए कंप्लीमेंट्री फंक्शन, द फर्स्ट वन इज f1 y plus 2x, सेकेंड रिपीट है x f2 y plus 2x. सिमिलर जैसे तीन बार रिपीट है तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, f1 y माइनस एक्स, m1 की वैल्यू -1 है ना, प्लस x f2 y माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे f3 ऑफ y माइनस एक्स. क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा, फाइन, चाहे u लिखो चाहे कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ तो रिपीट नहीं है ना वन में, तो वन में तो आपका सेम रह जाएगा y प्लस 1x. अब ये दोनों रिपीट हैं, सो यू कैन राइट एज ए f2 y प्लस 4x प्लस x f3 y प्लस 4x. रिमेंबर स्टूडेंट, यहां x नहीं आएगा बिकॉज रेपिटेशंस अमंग द 4 and 5 नॉट एज ए 1 and 4. क्लियर? थर्ड केस, when the roots are my complex numbers, fine, then there is no worry, you can write as a root is y plus first root alpha plus iota beta and second is alpha minus iota beta. Fine. So जैसे if you have the plus minus iota plus minus 2 iota, you can write the first two functions corresponding to plus minus iota and the second and f3 and f4 corresponding to plus minus 2 iota. Case 4 and 5 when you have non-repeating factors. अच्छा, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं. फाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद दी x, यहाँ पे हम y लिख रहे हैं. अब ये कैसे लिखना है मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. कैसे सिखाया था ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, कैपिटल D की जगह पे m सब्स्टिट्यूशन करना है और d प्राइम की जगह पे 1. तो क्या बन गई आपकी इक्वेशन, m स्क्वायर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई आपकी 0, m स्क्वायर है तो दो बार आएगा ना 0. फाइन, सो योर रूट्स आर 0 0 एंड -1. सो कैन यू राइट एज द सॉल्यूशन. सो पहली वन f1 y plus 0x. Now because 0 and 0 are repeating, so you can write as a x f2 y plus 0x. और थर्ड वाला रिपीट नहीं है, you can write as a f3 y minus 1. तो 0x को क्या लिख सकता हूं, fy. क्लियर? बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, जो करो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर कितना बन जाएगा 4. तो आपके f5 कितने होने चाहिए, इट मस्ट बी 4. तो क्या आपके 4 f5 आए, नहीं आए. इसका मतलब यहां पे एक नॉन रिपीटिंग रूट्स रह गया. फाइन, तो जितने रह जाएंगे वो हम लगा देंगे f4. फाइन, क्लियर? और वहां पे आपको x के साथ लिखना है इंस्टेड ऑफ दी y. वो सारे x अगर और भी रह जाएगा प्लस, फाइन, वो अगली एग्जांपल दिखाता हूं.
then you can write as a f4. This is due to the non repeating, ये आपके पास आया इसकी वजह से. क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल करता हूं. कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m इज इक्वल टू 0. फाइन. तो सोल्यूशन क्या हो गया इसका आपके पास? f1 y प्लस 0x. तो यही बन गया ना आपके पास. लेकिन इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज माई 3. तो इसका मतलब आपके पास f1, f2, f3 होने चाहिए, लेकिन यहां तो एक ही आया. तो दैट मीन्स दीज टू आर माई नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स. अब क्योंकि यहां पे मोर देन 1 है, तो पहले f2 के लिए लिखते हैं, दैट इज x. अब क्योंकि रिपीट करना है, नॉन रिपीटिंग इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द d प्राइम. फाइन. तो इंस्टेड ऑफ x की जगह पे हम y लगाएंगे, y ऑफ f3 ऑफ x. ये तो रिपीट ही होगा आपके पास. फाइन. लेकिन यहां पे इंस्टेड ऑफ, यहां पे जैसे प्रीवियस वाले में हमने क्या रिपीट करा था, क्योंकि रिपीटिंग था तो हमने x लिखा था. फाइन. और यहां पे आपका नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, तो यहां पे हमने y लिखना है आपके पास आंसर. क्लियर? ओके, लुक एट दिस वाइज. सो कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्विकली? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये कितना हो गया? m इंटू 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0. कैन यू फाइंड द रूट्स? इसके फैक्टर क्या बन गए? m माइनस 2, m माइनस 2 इज 0. तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 0, 2 एंड 2. क्लियर? और इसका ऑर्डर कितना है? यू कैन सी, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे डिग्री 4 बन जाएगी ना आपके पास, तो आपके 4 आएंगे f1, f2, f3. तो पहले f1 लिखते हैं फर्स्ट वाले के लिए. 0 के लिए क्या हो जाएगा? y प्लस 0x. यहां पे दोनों क्या है? रिपीटिंग है. फाइन. सो f2 y प्लस 2x प्लस x. जो वैल्यू m के साथ से आएगी वहां पे x लगाएंगे हम. f3 ऑफ y प्लस 2x. अब इसकी डिग्री तो 4 है, आपके रूट्स खत्म हो गए. इसका मतलब एक आपके पास नॉन रिपीटिंग रह गया f4, और वो सारी चीजें अब आपको x के साथ करनी है. फाइन. सो द रूट्स आर माई, चाहे पहले नंबर पे लिख दो चाहे बाद में लिख दो, दैट्स रिमेन दी सेम. नाउ how we can write the derivations? So as we can see, the equations AIs are my constants, homogeneous linear partial differential equations. तो मान लो जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं? m1, m2, m3 आर द रूट्स. तो इसका मतलब मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं ना, d माइनस m1, d माइनस m2, तभी तो बनेंगे ना रूट्स. सो आई कैन राइट एज ए d माइनस m1 ऑफ d प्राइम एंड सो. फाइन. तो मैं इसकी कोई ith प्रोडक्ट उठा लेता हूं, m माइनस, यही तो बनेगी ना इसकी ith प्रोडक्ट. फाइन. तो ith प्रोडक्ट का मैं सोल्यूशन निकालता हूं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, कैपिटल D आपका क्या था? डेल बाय डेल x, और d प्राइम क्या था आपका? d बाय डी ऑफ y. आई कैन सब्सटीट्यूट इनटू दिस इक्वेशन. तो जैसी ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बन जाएगा? ये डेल u बाय डेल x माइनस mi डेल u बाय डेल y. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? 1. तो जैसे ही आपको पार्शियल डिफरेंशियल का ऑर्डर 1 मिला, हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस? बाय यूजिंग द लैग्रेंज इक्वेशंस. फाइन. तो वो लैग्रेंज इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल. यू कैन सी लैग्रेंज इक्वेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऑल आर माय लैग्रेंज लेक्चर्स. क्लियर? तो आप लैग्रेंज इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए. तो इसके लिए क्या लिखना होगा आपको? dx ओवर dy ओवर solution is my u. You can compare with a capital P plus Q into capital Q, which is equal to R. So clearly say R is my 0. What is the Q? Q is the del by, so that's a minus of mi, and capital P is my coefficient of the del u by del x, which is my 1. Clear? Now from the last fraction, यहां से एक solution क्या मिल जाएगा आपको? Constant, और फर्स्ट एंड सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, mi इंटू डी एक्स माइनस mi ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू डी वाई. नाउ यू कैन इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड. तो ये कितना बन गया आपके पास? माइनस mi x विच इज इक्वल टू y प्लस कॉन्स्टेंट आई कॉल एज ए c2. और इसको क्या लिख सकता हूँ? y प्लस mi x, कॉन्स्टेंट को उधर ले जा रहा हूँ, माइनस c2 को फिर से c2 ले रहे हैं. तो जैसे ही आपके पास दो कॉन्स्टेंट आ गए, तो उससे क्या मिलता है आपके पास? सोल्यूशंस. So I can write as a solution is u is equal to arbitrary, that means how you can write c2 is the function of the c1. I can substitute the value of the c2 and c1, you will get the
required solution of the or the complementary function. So क्या स्टेप फॉलो करेंगे जब भी हम complementary functions को लिखेंगे? First of all, we can write the auxiliary equations and then we can find the roots. Based on the roots, we can write as the auxiliary complementary function is y plus mix. Make sure this n I कितनी बार लिखा जाएगा? That must be the order of the partial differential equations. Fine. और ये complementary functions सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, how we can write the complementary functions. Fine. तो इस तरह से आप इसके complementary functions के solutions निकाल सकते हैं. Clear? So we will see how we can find the solution of the homogeneous partial differential equations in our next lecture. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.